Welcome to the Asian Sunday interview, and thank you for speaking to us. Thank you. It's absolutely a pleasure. So my first question, and it's to both of you. Why the topic of Raniganj disaster, and why Mr. Gill's story? Why did you choose that story, and how did this happen? I think there are so many unsung heroes, and it's so inspiring. I feel like every hero, they're heroes because they've done something so good that the entire nation knows about them. These are the unsung ones which we haven't heard of. And when I heard his story, it was like watching a thriller movie. So for me, it wasn't just a hero who's done something good and helped people and being selfless, but it's a hero who's lived an action thriller literally in real life. And I think for me, that was a very important point when I'm like, this has to be made into a film. It's pacey, the story is so interesting. He's an engineer, the way he uses his mind to sort of extract people out. So, finding the miners, getting them out is only one part of the mission, but how he exactly reaches there, the kind of, nuances he faces along the way, and I think that for me was very exciting to jump onto the project. Yeah. Desai ji, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? If you want to add anything. हाँ जी, सिर्फ जब ये सब्जेक्ट मेरे पास आया, स्टोरी राइटर दीपक किंगरानी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने कहानी सुनी थी कि बहुत ही छोटी टू पेजर कहानी सुनी थी कि कैसे गिल साहब ने 65 माइनर्स को बचाया था, सो मुझे फैसिनेटिंग ये लगी थी कि ये कहानी किसी को पता ही नहीं. जब मैंने भी सुनी तो मुझे लगा अच्छा ऐसा हुआ था 1989. तो मैंने रिसर्च किया सारी चीज में. अगेन रिसर्च जब हम बोलते हैं तो गूगल ही पहले हम लोग सबसे पहले टाइप करते हैं, तो वहां पे भी एक ही आर्टिकल था महावीर कॉलोरी का. फिर मैंने और डिटेलिंग में जब रिसर्च किया तो कहानी में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें लेयर्स बहुत है. ह्यूमन ड्रामा है, थ्रिल पार्ट है, सारी चीज है. एक कमर्शियल फिल्म के लिए जो चीजें चाहिए उस फिल्म के लिए सारी चीजें एलिमेंट थे उसमें. एंड सबसे बड़ी बात कि ऐसी कहानी मुझे लगा कि लोगों को पता लगनी चाहिए. जैसे मुझे अगर पता चला, ऐसे बहुत लोगों को नहीं पता थी. मैंने जिनको भी सुना सबका यही था अच्छा ऐसा हुआ था. तो वो एक चीज थी कि नहीं, ये कहानी सब लोग के सामने आनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि कैसे 1989 में एक ऐसी चीज क्रिएट की गई थी जो इंडिया में पहली बार हुई, कैप्सूल क्रिएट किया गया, और कैसे 65 माइनर्स को बचाया गया था. इतना बड़ा भारत का रेस्क्यू मिशन हुआ था जो किसी को पता ही नहीं. तो वो एक चीज मेरे लिए थी. एंड अगेन के एक आम आदमी है ना जो अपना जॉब कर रहा है, कैसे वो अपनी लाइफ को रिस्क में देकर विदाउट अपनी फैमिली के बारे में सोचे बिना कैसे माइनर्स लोगों के लिए उनको बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डालता है, उनकी फैमिली को मिलाता है. बड़ी कहानी है अपने जी. एंड चैलेंजिंग भी थी फिल्म. ओके, तो वो जो सारी चीजें थी तो मैंने बोला चलो करते ही फिल्म बनाते ही है. That's really well. Ma'am, the questions to you know. So during the production part, we hear that there was a 48 feet hole that was dug on the set so that our exact replica can be created of the Raniganj mine. So if you could take us through the whole process and the challenges that you had to face while doing so. So the real mines are of course 300 and 350 feet deep. And kahani we've heard it from Teenu ji so many number of times. So when we actually went on ground and we said, okay, this is the location where we're going to shoot it, and we said, chalo, just make a little bit of a hole and let's put the capsule in it. The production designers went to our director Teenu ji, and he said, yay, bilkul nahi. No 10-12 feet. I want the miners to feel what it feels like. It's not 350 or 300 feet, but at least I want 38-40 feet ki at least unko thode time tak, thode seconds एक कुछ फील हो तो उनके जो रिएक्शंस है वो एग्जैक्ट रिएक्शंस आएंगे, एंड दे विल फील द पेन ऑफ व्हाट पीपल एक्चुअली वेंट थ्रू. And I think that's when he said I want something made as 40 feet. So when the director wants something, the producers have to make it happen. And that's how
you know, everything was done when, you know, while they were digging. Tinuji will of course elaborate on it. You know, the water started filling up in the last 10-12 feet, and then we had to do casements. We were in the middle of a field, so we had to do metal casements, because even safety is extremely important to everybody. Yeah. And you know, and that's how we sort of replicated 10%, I would say, of what it would have happened at that point of time, without technology, without know-how, without Google. You know, right now you have Google, which tells you almost everything. You have devices that tell you at what level the water is, so it's so much easier. But I want to completely say that I was blown away with this method of my director. And I think he's such a method director, because, you know, he wanted to get everything very right. You'll be hearing this in a lot of people's interviews. Even if something is kept half a kilometer away at the corner, you know, his eye will tell you, isko hatao, isko nikalo, or, you know, put this there. So, you know, I think it's really important, because the film requires that. You know, we are inspired by real events. It's of course dramatized, the film. It's a big thriller, but he wanted to keep the setting and the topography exactly how it is. And I think for me, that was a big thumbs up, because globally, you know, films like that are hugely appreciated. Yeah, exactly. So did you also visit the real mines? Did your team visit the real mines to, you know, yes, 100%. The entire team actually went a couple of times. Tinuji has visited himself, and with the team, with the writers, with Mr. Jaswant Singh Gill as well, when he was alive. He'll elaborate more on that. But the entire team, and they actually sort of stenciled the entire mine, because we wanted the structure of the walls, the color of the walls. We wanted everything to look exactly the same, even when we had to recreate it, because, you know, shooting in mines is not allowed for safety reasons. When we recreated that, hats off to our production designers, both Amrish and Daya, who've done an absolute phenomenal job. And of course, the captain of our ship, Tinuji, who's guided them throughout and made this happen. But, you know, बहुत ही अच्छी बनी. And I think as a producer, I'm so proud of this project. I'm so proud of the way it's turned out. And you see that, you know, you see the authenticity, you see that it's all love, it's all heart. Even though it's pacey, you feel the emotion in the film. Yeah. And from what I gather, that as a producer, is this the most challenging project that you have been in? It is really challenging, because you need to do justice to, you know, when it was to the topography of 1989. You need to do means I'll tell you something as small as this. We had to actually buy vans, because vans like those are not available anymore. And then on the vans that are available today, we had to actually carve out structures which were made in 1989, because that's how authentic you want it to be. And you know, the response to the teaser and the trailer has been so overwhelming. You know, we're getting our first round of responses on the reviews, and it's heartening. It's absolutely heartening, and I'm so proud of the team, and I'm so proud of Tinuji and for the work that he's created. Yeah. But you know, he's the captain, so you should ask him all these questions. Yeah, I know. So I'm coming to him. Yeah. Tinuji, अभी गिल साहब का जिक्र हुआ था, तो आपने गिल साहब से, जैसे मैम ने बताया कि मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई आप में और उनमें, थोड़ा आप अगर विस्तार से बता सकते हैं। अविनाश, जब मैंने डिसाइड किया कि फिल्म बनानी, तो सबसे पहले मुझे गिल साहब को मिलना। तो हमने गिल साहब को पहले तो ढूंढा कि गिल साहब कहाँ है। किसी ने कहा कि वैंकूवर शिफ्ट हो गए, किसी ने ये तक कहा कि गिल साहब रहे नहीं है। तो हमने फैमिली की ट्राई की, फैमिली में से कोई मिले, पर फाइनली थैंक्स टू सरप्रीत भैया, जो एल्डर सन है गिल साहब के, उनके थ्रू मुझे गिल साहब का नंबर मिला फेसबुक की चैटिंग से। फिर मैंने कनेक्ट किया गिल साहब को, गिल साहब से बात हुई, गिल साहब ने बोला डन, आप बना सकते हो मेरे ऊपर फिल्म। फिर हम लोग ने फ्लाई डाउन किया अमृतसर, और मेरा यही था कि उनकी जर्नी क्या थी उन 3 दिनों की। इन 3 दिनों में टाइम कम था, काम बहुत कुछ करना था, लोगों को बचाना था, प्रेशर था, ऐसी चीजें वो लोग अटेम्प्ट कर रहे थे जो पहले भारत में कभी नहीं हुआ था। एंड उनके पास फेल होने का वो नहीं था, क्या बोल सकता हूँ, उनके पास वो ऑप्शन नहीं था कि वो फेल हो सके। तो जो भी डिसीजन लेना है वो राइट डिसीजन लेना है, उन फंसे हुए माइनर्स के लिए और वो फैमिलीज के लिए,
जो अपने पति, अपने भाई और अपने फादर की वेट कर रहे हैं। तो वो जो सारी चीजें थी ना, वो 3 दिन उनके कैसे गुजरे, डे नाइट, वो मैंने पूरी सारी चीजें हमने रिसर्च की उनके साथ, कैसे प्रोसेस किया उन्होंने, कैसे प्लानिंग की थी। कम से कम 150 घंटे की फुटेज थी मेरे पास गिल साहब के साथ। उनकी वाइफ निर्दोष गिल, उनका क्या उन 3 दिनों में इमोशन था, किस तरह से वो देख रहे थे इन 3 दिनों को, उनको क्या यादें थी। फिर हम लोग ने उस हॉस्पिटल में गए जहाँ पे माइनस को रखा गया था। बाहर निकालने के बाद हम वो क्रेन ऑपरेटर से मिले जिन्होंने यूज की थी। हम उन 3 माइनर्स से मिले जिनको गिल साहब ने बाहर निकाला, तो उनका एक्सपीरियंस कि उन 3 दिनों जब वो नीचे फंसे थे उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो ये सारी चीज जब रिसर्च की ना हमने, तो बहुत सारा मटेरियल था। भी हमें ये था कि इस सारी चीजों में हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना जी। अब जैसे आपने कहा कि जो आपने बोरहोल जो किया था, बेसिकली हमने एक बोरहोल नहीं बनाया था, हमने 3 बनाए। अच्छा, ओके। हाँ, तो पहला हमने बनाया था फॉर कैप्सूल जो 50 फीट का था जी। ओके, 40 फीट के बाद पानी आना शुरू हो गया था, तो लिटरली हमने ब्लास्ट किया था। ओह, ब्लास्ट करके हमने डिग किया था। तो ये सारी चीज, तो एक ये बनाया था हमने 50 फीट का। एक इन सिंपल लैंग्वेज जैसे कुआं होता है जी, कुआं जो होता है वेल, वो हमने डिग की थी, वो भी 50 फीट की थी। ओह, उसमें भी हमने 3 बार ब्लास्ट किए थे, 3 बार ब्लास्ट किए थे। और वो ब्लास्ट ऐसे किए थे जैसे लोग कोल माइन में ब्लास्ट करते। ओके जी, हाँ, डेफिनेटली सेफ्टी प्रिकॉशन रखी थी क्योंकि आजू बाजू गाँव था, हम खेत में ब्लास्ट कर रहे थे, सारी चीजें थी। एंड थर्ड जो हमने डिग किया था वो इंक्लाइन, ओके, प्रॉपर्ली हमने इंक्लाइन का पूरा बनाया था जिसमें बुलडोजर से डिगिंग हो रही है और प्रॉपर्ली कर दिया। तो ये 3 जो चीजें थी वो हमने प्रॉपर्ली रियल क्रिएट की हुई। हम ये वीएफएक्स में भी कर सकते थे, बट बहुत ही हमारे चीज सेम पेज पे थी, मैं, मेरे प्रोडक्शन डिजाइनर एंड प्रोड्यूसर्स की, जितने हम रियल के पास रह सके उतना हम अटेम्प्ट करें। जैसे कोल माइन के बाबत, जैसे कोल माइन के सेट लगाए थे हम। कोल माइन के जो सेट लगाने से पहले हम लोग ने सारी यूनिट, प्रोडक्शन डिजाइनर्स, प्रोडक्शन टीम, सब लोग हम कोल माइन में उतरे थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, कोल माइन 5 से 6 किलोमीटर में फैली होती है जी। तो जब आप 350 फीट नीचे जाते हो लिफ्ट से, उसके बाद आपको 1 घंटा चलना पड़ता है उस कोल माइन में, तब जाके आप उस जगह पहुंचते हो जहाँ पे माइनर्स लोग काम करते हैं। ओह, तो आप सोचो कि आप 1 घंटा वॉक कर रहे हो उस कोल माइन में जहाँ पे कोई लाइट नहीं है सिवाय कैप लैंप के। तो जब मैंने वो 1 घंटा वॉक किया ना, और जो मैंने महसूस किया, मैंने तभी ठान लिया था कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ऑडियंस को महसूस होना चाहिए। अगर वो चीज हम क्रिएट कर सके तो हमारी अचीवमेंट। क्योंकि कोल माइन की जो दुनिया है अब तक किसी देखी नहीं है। अगेन हमने मिक्सचर रखा है रियल एंड कमर्शियल एक्सपेक्ट। तो सारी चीजें कैसे हम रियल वर्ल्ड के नजदीक रहे एंड कैसे हम कमर्शियली फिल्म बनाए। एंड प्रोडक्शन डिजाइन जैसे अमरीश दया जो हमारी प्रोडक्शन टीम थी, रियल कोल माइन में गए, वहां से उन्होंने कोल के पत्थरों की डाई निकाली और उसके बाद हमने सेट लगाया। तो इतनी डिटेलिंग में हमने ये क्रिएट किया। पानी के भी 2 सेट लगे थे, कोल माइन के 2 सेट बनाए गए थे। एक कोल माइन जिसमें पानी नहीं होगा और एक स्पेशल कोल माइन का सेट बनाया गया जिसमें पानी का वाटर फ्लड की सीक्वेंस करेगा जी। दिस क्वेश्चन टू यू आल्सो मैम, क्या अक्षय कुमार आपके पहले से, कास्टिंग की अगर बात करें, अक्षय कुमार आपके मन में पहले से थे कि यही फिट एक्टर हैं जो ये प्ले कर सकते हैं गिल साहब को? You know, as a producer मैं ये कहूँगी कि हमने उनके साथ 3 पिक्चरें बनाई हैं, and I feel कि, I mean, if I put myself in the audience's place and I feel कि अगर ये एक unsung in भारत के हीरो के बारे में कहानी है और आपको एक आदमी चाहिए जो इतने लोगों को बाहर निकाल के आ सकता है, या you know, या कोई मिशन हो, for me as an audience I feel Akshay sir fits the bill. Yeah. Truly fit the bill. And it's not now, it's since before we, you know, हमने तो अभी उनसे 3 साल से पिक्चर बनाना चालू किया, लेकिन उसके पहले भी जैसे एयरलिफ्ट हो गई या उनकी केसरी थी,
या बेबी थी. You know, when you think of a hero who can fight against all odds and come and do this, in my opinion, it's only Akshay Kumar. And you know, he's one of my most favorite actors. He's also our lucky charm for the industry. And yeah, so for me there was when it came to us the script, and you know, Akshay sir said that मेरे पास ये बहुत एक अच्छी कहानी है, आप लोग सुनिए. And he sort of had heard the script before, and when Tinuji came to narrate to us, it was a yes from the very beginning, because we were like, there's nobody else who fits this than him. He was the perfect cast for us. Yeah. And Tinuji, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी, जब कहानी सुनाई गई थी, जब मैंने आपको बताया था कि मुझे 2 पेजर कहानी सुनाई गई थी दीपक इंगरानी ने, तो मुझे याद है कि सर की बर्थडे थी उसके 1 महीने बाद. तो सर से बात हो रही थी, तो सर ने बातों में कहा कि यार मुझे अच्छा सब्जेक्ट दे गिफ्ट के लिए, एज अ गिफ्ट. मैंने बोला सर बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट मुझे सुनने में आया, रियल इंसिडेंट है, एक सरदार जी ने कैसे पैसे कमाए, उसकी जान बचाई थी. तो उन्होंने तुरंत बोला कि मुझे तू सुना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और जब उसके बाद जब मैं रिसर्च करने गया, है ना, रिसर्च करने गया, जब मैं गिल साहब से रिसर्च कर रहा था, डैडी जी से रिसर्च कर रहा था, तो उस दौरान है ना, मुझे फील हुआ, रियलाइज हुआ कि जो मैं अक्षय सर को मैं सोच रहा हूँ वो बहुत ही राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ. और उस दौरान में डेफिनेट हो गया चीज को लेकर, नहीं अभी अक्षय सर को कैसे भी करके कन्विंस करें, क्योंकि जो गिल साहब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग थी, जो उनकी स्टाइल थी, है ना, वो मुझे दिख रहा था कि अक्षय सर बहुत अच्छी तरह से प्ले करेंगे, मुझे नजर आ रहे थे सामने. और यही सारी चीज जब स्क्रिप्ट खत्म हुई तो मैं अक्षय सर के पास गया, एंड अक्षय सर को मैंने स्क्रिप्ट सुनाई. ओके, एंड अक्षय सर को स्क्रिप्ट सुनाने के बाद अक्षय सर ने जैसे स्क्रिप्ट सुनी, उन्होंने बोला मैं कर रहा हूँ ये पिक्चर. एंड ऑन द स्पॉट जैसे स्क्रिप्ट खत्म हुई, नरेशन खत्म हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे गिल साहब से बात करनी है. और मैंने गिल के साथ उनका फेस टाइम कराया. उन्होंने आधा पौना घंटा की. ओके, मुझे उन दोनों की बातों से बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग 6-7 साल से एक दूसरे को जानते हैं. एंड अक्षय सर का बहुत क्लियर था कि बोले कि गिल साहब आपने कर कैसे दिया ये सब, कैसे सोचा ये सब. तो अक्षय सर का वो एक फैसिनेटिंग, कोई चाइल्ड क्यूरियोसिटी होती है ना, कि एक आपने स्क्रिप्ट सुनी है, ओके, और उसके बाद उस कैरेक्टर से आप मिलते हो, ये चीज की हुई है जी. तो जितनी क्यूरियोसिटी मुझे थी ड्यूरिंग रिसर्च एंड स्क्रिप्ट लिखते हुए गिल साहब के, और ये जो भारत का जो रेस्क्यू हुआ था, कोल माइन का रेस्क्यू हुआ था, उतने क्यूरियस अक्षय सर भी थे जी. तो अच्छा, मतलब फॉर्चुनेट के जो मैंने सोची थी चीज जी, मैं अक्षय सर को मैं करूंगा कास्ट जी, भी उतने एक्साइटेड हो गए. तो इस चीज में क्या था कि हमने जिनको सब्जेक्ट सुना है ना ये जी, उन्होंने सब लोग ने वन गो में हाँ बोला. मतलब कई लोग ने तो किसी कमिटमेंट भी हिला दी उनके लिए, ओके, कि नहीं यार ये स्क्रिप्ट जाने नहीं देनी जी, इंक्लूडिंग उन्होंने सुना, उन्होंने भी कहा नहीं मुझे इस फिल्म का पार्ट बनना है जी, मुझे निर्दोष गिल का रोल प्ले करना है जी. सो निर्दोष गिल के जब मैं आपको जब परिणति की बात हुई, तो जब उनसे मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे उस पर झलक दिख रही थी परिणति. ओके. तो जब कास्टिंग की जब बात हो रही थी ना, मैंने बोला मुझे निर्दोष गिल परिणति चोपड़ा थी. ओके. देन प्रोड्यूसर सब लोग ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, ऑल गुड यार, परिणति अच्छी लग रही है, परिणति को अप्रोच कर. या सो दिस वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन. क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी मूवी से, एंड दर्शकों को आप क्या बोलना चाहेंगे, खासकर कि अगर यहाँ पे मूवी अभी जी 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 हाँ जी, एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, क्योंकि 6 साल की मेहनत है मेरी टीम की. और ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि भारत का एक ऐसा रेस्क्यू मिशन जो किसी को नहीं पता है, और एक यूनिक रेस्क्यू मिशन है जो भारत में पहली बार हुआ. भारत में पहली बार कैप्सूल बनाया गया,
65 माइनस को बचाया गया, है ना। निक ऑफ टाइम में बहुत सारी चीजें हर्डल्स थे, उस सारी चीज को क्रॉस करके कैसे 65 जिंदगी को बचाया गया, उनकी अपनी फैमिली से मिलाया गया। तो एक ये इंसान और एक टीम की एक 3 दिन की जर्नी है जो सबको देखनी चाहिए कि कैसे इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके ये भारत का इतना बड़ा मिशन है सक्सेसफुली फिनिश किया। जी। So thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. I'm really sorry, Avish. I had a call from the theaters. I had to step out for 2 minutes. I'm really No, sorry. it's okay. It's okay. And if you want to say something to our audience, like while leaving. Audience से मैं कहना चाहूंगी, thank you so much for all the love you've given to our trailer and teaser. We made it with all heart. It's about and you know, it's about Indians making everyone proud across the borders. And you know, we are seeing the top CEOs all over the world right now who are Indians. And you know, Jaswant Singh Gill ji holds the record for the world's most successful and largest rescue operation ever performed till date. So you know, his record still stands, and I think that makes me so proud to be an Indian. That back then in 1989, जब ना सोशल मीडिया था ना गूगल था, गूगल के बिना तो आजकल हम भी कुछ नहीं कर सकते, even when cook will using Google, you know, something as simple as that. So you know, to create something of that stature of you know, trying to extract people out, I think for me that act is nothing short of brilliance. I just want to say one more thing. You know, I don't know, but I mean, at least me and everyone around me was so clued in when the Ocean's Gate ka Titan had got lost. उसमें खाली 4 लोग थे. There were 4 people in that, and there was a limited amount of oxygen left, and every hour there were updates on every global news channel because you know, right now everything is connected to social media. Back then in 1989, people did not witness this incident. If social media was present at that time, this would have been globally known as one of the biggest rescue acts. And I think our endeavor as a production house is to bring this story to people. We want to inspire the new generation, and we want to bring his story to life on the screen. So it's a humble request for everyone to go and watch his film. It's all about bravery. It's all about India. It's all about inspiration. Yeah. So thank you so much for speaking to Asian Cinema and giving the time. Thank you so much, Avish. And all the best for the movie. Thank you. Thank you. Thank you so much. Did you see that, Avish? What he did is what Akshay sir has done this in the film. It's from him only. He gives a thumbs. Oh, that's nice. Thank you so much, sir. All right. Thank you so much. Goodbye. Bye.